Mira Gulzar, and I feel proud to be a part of such an elite crash course institution where I have taught by gallant teacher Mr. Masroor sir, whose teaching goes beyond the subject-centered study and classroom. We all have assembled here today to motivate and judge the young minds present among us. Apart from it, this is a great occasion to welcome me with the peace of Islamic salutation, that's Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullah. To one all present here and in way, let me introduce you with a topic entitled With the Union Budget 2023, and I hope you will pay magnificent attention towards me. The Budget Division of the Department of the Economic Affairs in the Finance Ministry is the nodal body responsible for preparing the budget. The Union Budget 2023-2024 was presented on 1st February 2023 at the Parliament of India in Delhi by the Union Ministry for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman. The Union Budget seeks to complement macroeconomic level growth with a focus on macroeconomic level all-inclusive welfare Sabka Saath Sabka Vikas. The Finance Ministry Nirmala Sitharaman estimated India's total expenditure at Rs 39.45 lakh crore and project fiscal deficit and 6.4% of GDP for fiscal year 2023. The key highlights of the budget 2023-2024 are as follows. Vision for America, hope for the better future. Opportunities for citizens with the focus on the youth. Growth and job creation. Strong and stable macroeconomic environment. Reaching the last mile. Youth power. Financial sector. Green growth. Unleashing the potential. Infrastructure and investment. Inclusive development. Sabka Saath, Sabka Vikas. Inclusive development achievement. Sabka Saath, Sabka Vikas. 9 crore drinking water. Connection to rural houses. Cash transfer of 2.2 lakh crore to over 11.4 crore farmers under PM Pradhan Mantri Kisan Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. 4.78 crore PM Pradhan Mantri Jan Dhan Bank accounts. 9.4 crore LPG connection under Ujala. 2.202 crore COVID vaccination of 102 crore person. 11,007 crore household toilets constructed under SBM Swachh Bharat mission. At last, the Union Budget 2023-2024 on Wednesday allotted Rs 35,581.44 crore to Jammu and Kashmir as central assistance. Thank you. Bye bye. शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता. शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता. पुरदम है अगर तो नहीं है खतरे इब्ताद. तू शाहीन है परवाज है काम तेरा. तू शाहीन है परवाज है काम तेरा. तेरे सामने आसमां, तेरे सामने जहां और भी है. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful, most gracious, and most compassionate, जो रहीम है, करीम है और निहायत रहम करने वाला है, जो अल गफ्फार है, the forgiver, जो अल मुतकब्बिर है, the all-powerful, जो master of the day of judgment and master of the doomsday है, जिसकी कुर्सी extends over the heavens, over the mountains, over the earth, and overall entire and whole universe, जो great high है and the most high है. Secondly, millions of peace and blessing, crores of peace, lakhs of blessing of Almighty Allah upon His final and last messenger, that
that is Muhammad bin Abdullah and son of Amina, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जहां तक इस क्विज सेशन का सवाल है, मुझे बहुत मसरत हुई, खुशी हुई, शादमानी हुई आपकी परफॉर्मेंस देखकर। आपने यहां बड़े अहसन तरीके से अपने आप को पेश किया है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज एंड आपका इंटेलेक्चुअल जो स्टैंडर्ड है, उसने मुझे बहुत ही इंप्रेशन दिया है। मैं मुतासिर हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू वेरी मच। तो इसके हवाले से मैं आज आपको जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेप, उसका संदेशा क्या है हमारे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए, प्राइमरी लेवल तक क्या होना चाहिए, फाउंडेशन लेवल क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज क्या है बच्चों का, मिडिल स्टेज क्या है, देन सेकेंडरी स्टेज क्या है बच्चों का, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा आगाह करना चाहता हूं। तो अगर हम देखेंगे इसमें बहुत सी परिवर्तन आए हैं, इसमें बहुत सी तब्दीलियां आई है। अगर हम देखेंगे 1968 इसकी जो पहली तरमीम आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो मिस इंदिरा गांधी ने की है। फिर इसके बाद और एक इसमें परिवर्तन आया है इन 1986 राजीव गांधी के द्वारा, और आफ्टर 34 इयर्स 2020 को इसको फिर से एस्टैब्लिश किया गया, उसको मॉडिफिकेशन की गई और 1922 में इसको लॉन्च किया गया है स्कूलों के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहला नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो आपको पता ही है 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब 3 साल का होगा, 3 साल की उसकी जो एजुकेशन है वो पूरी स्कूलिंग होगी, यानी उसमें 3 सालों तक बच्चे को आंगनवाड़ी में जाना है। फिर उसके बाद जब वो 4वें साल का होगा, उसको स्कूल में इंदराज करना है, स्कूल में दाखिला लेना है। वहां पर वो नर्सरी में रहेगा। फिर उसके बाद जूनियर एलकेजी, देन ही एंड शी विल बी प्रमोटेड इन सीनियर यूकेजी, देन आफ्टर दैट फर्स्ट एंड सेकंड। ये इसका फाउंडेशनल स्टेज है। उसमें बच्चे का जो, अगर हम मैथ की बात करेंगे, यानी जो उसकी फाउंडेशनल लिटरेसी है एंड न्यूमरेसी, यानी बच्चे को इन यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड में बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये उसको आना चाहिए। एंड जो इसके साथ स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ओरल वोकैबुलरी, यानी इसका एक्सप्रेशन ये बच्चे के अंदर होना चाहिए। जब वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा, 3rd, 4th एंड 5th में, फिर हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर ये जो चीजें हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी है बच्चे के अंदर, यानी रीडिंग, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ओरल वोकैबुलरी, उसको हमें मोटिवेट करना है, उसको हमें इंस्पिरेशन देनी है, उसको कॉन्फिडेंट बनाना है। हाँ, बच्चे के अंदर प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करना है, जब हम रीजनिंग की बात करेंगे, जब हम न्यूमरेसी की बात करेंगे, बच्चे के अंदर वो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा, उसमें हमें देखना है कि क्या यह बच्चा वाकई तौर पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है, अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी रीजन का इस्तेमाल करता है। हाँ, उसको जो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं 3 R's, रीजनिंग, रेजिलियंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो करता है, क्या वो कर पाएगा। अगर बच्चे के अंदर ऊपर कोई फेलियर आएगा या कोई सडन इवेंट होगा, क्या वो उसको फिर से उभरने की कुव्वत है इसके अंदर, क्या इसके अंदर रेजिलियंस है, ये चीजें हमने उसको फाइंड आउट करनी है। फिर वो मिडिल स्टेज में जाएगा। फिर इसी तरह, यानी जब बच्चा 18 साल का होगा, उसका 12th कंप्लीट होना चाहिए। जब बच्चा 11 साल का होगा, उसका 8th कंप्लीट होना चाहिए। सॉरी, उसका ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है, हाँ 8 यानी मिडिल स्टेज, वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए।
तो जब बच्चे 18 साल का होगा उसका ये जो यानी 12th है वो क्लियर होना चाहिए। इसका संदेशा है, ये इसका संदेशा है। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि जो यानी जो हाल में निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया है संसद में, उन्होंने उसको कितनी फंडिंग की है, स्कूलों के ऊपर उन्हें कितनी फंडिंग की है, उसका थोड़ा सा मैं आपको ये जो उसकी तरफ मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसको 50,000 करोड़ यानी यूनियन बजट से मिले हैं। यानी जो निर्मला सीतारामन जी ने उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसको ₹50,000 करोड़ उसको दी गए हैं। ठीक है, इसी तरह जो इकालविया स्कूल्स है यानी जो ट्राइबल स्कूल्स है या जिनको हम रेजिडेंशियल स्कूल्स भी कहते हैं, या जो नमैडो के लिए होता है, जो खाना बदोश होते हैं या गुज्जर बकरवाल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए जो स्कूल्स है इकालविया कहते हैं उसको, उनको 40,000 करोड़ दी गए हैं। ठीक है, यूनियन बजट से। तो जो एक्स्ट्रा ये जो जोर दिया गया है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर देना है। इन्हें बच्चे के अंदर जो वोकेशनल स्किल्स है उनको हमें देखना है। बाकी थैंक यू।